Hello students, welcome to my channel, and today we are going to discuss about probability distributions. In previous video we had discussed about basic concept of probability distribution, that is random variable, then domain set, codomain set, a range and so on. Now in this video we will discuss about types of random variable and exercise 1.1. तो चलो स्टार्ट करते हैं probability distributions. You are familiar with random variable. You know random variables are denoted by capital letters, capital X, capital Y and so on. Random variable is nothing but function. This function defined from A to B, where A and B are any two sets, means X defined from A to B, where A and B are finite set or any two sets. If X is a function, then A is called as domain set and B is called as codomain set. If domain set become a sample space, then this X is called as random variable. तो आसान डेफिनेशन है, random variable कब होगा? A function become random variable if the domain set is a sample space, then the function X is called as random variable. बस यहाँ पर इतना ही याद रखना है. अभी यहाँ पर देखिए आप कोडोमेन जो है दैट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. ऐसा जरूरी नहीं है तो सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए. इट मे बी फाइनाइट सेट, मीन्स इट मे बी 0, 1, 2. Suppose two coins are tossed and getting at least one heads up, then the range set or codomain ये आ जाएगा 0, 1, 2. ओके, और टू हेड्स अप एटलीस्ट और एग्जैक्टली टू हेड्स अप, तो ये इस तरीके से कोडोमेन आ जाएगा, दैट इज 0, 1 एंड 2. तो यहाँ पे हर टाइम इससे जरूरी नहीं तो आर आना चाहिए. तो सैंपल स्पेस टू एनी फाइनाइट सेट, देन द फंक्शन एक्स इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पर एक ही याद रखना है, द डोमेन सेट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ random variable, there are two types of random variable, namely discrete random variable and continuous random variable. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं discrete random variables. Definition: a random variable capital X is said to be discrete random variable if, condition दिया है, if the number of its possible values is finite. The number of its possible values is finite. Okay, or काउंटेबली इनफाइनाइट. तो ये फाइनाइट तो मालूम हो गया आपको, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज फाइनाइट. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, दैट इज फाइनाइट नंबर. तो काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर हम थोड़ी देर के बाद इसे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मीन बाय काउंटेबली इनफाइनाइट? ओके, तो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन. A random variable capital X is said to be discrete random variable if the number of its possible values is finite or countably infinite. The values of a discrete random variables are usually denoted by non-negative integers, that is in a set 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, तो 0 भी आ सकता है. Suppose number of children in a family means no children, that is 0, that is outcome is 0. Okay, इस तरीके से 0 से स्टार्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हमने, देखिए द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. सेकेंड एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल वार्ड. थर्ड वन, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ डीलर. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, मीन्स हम ये काउंट कर सकते कितने कार्स यहाँ पे सेल किए, हम ये काउंट कर सकते कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है. इस तरीके से हम यानी काउंटेबल और फाइनाइट, राइट.
Now, the values of discrete random variable are obtained by counting, means it is countable. Next point is the what is the meaning of countably infinite? That is very important point. Note that the sample space in this experiment is finite, and so is the random experiment defined on it. Suppose the sample space need not always be finite. For example, experiment of tossing a coin until a head is of 10. मान लो हमें एक कॉइन टॉस करना है, जब तक हेड नहीं आता है तब तक हम टॉस करते रहेंगे. सपोज एक चांस हम लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर दिए, तो लकीली वो टॉस करने में उसे एच मिल गया हमें, यानी हेड, इट गिव्स ए हेड. ओके, फर्स्ट चांस में हेड आ गया. सपोज सेकंड ट्रायल कर रहे हैं हम, a coin is tossed, फर्स्ट ट्रायल में इट शोज टेल, मींस टी. ओके, वापस सेम कॉइन टॉस करेंगे, इट शोज हेड. देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, फर्स्ट चांस में कॉइन शोज हेड. सेकंड ट्रायल में देखिए, फर्स्ट टाइम टॉस किया तो टी दिखा रहा है, सेकंड टाइम टॉस किया तो एच दिखा रहा है. थर्ड ट्रायल करते हैं हम, थर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट बार कॉइन टॉस किया टी आ रहा है, सेकंड टाइम टॉस किया टी आ रहा है, एंड थर्ड टाइम में एच आ रहा है. तो इस तरीके से ये सो मेनी टाइम्स हमें ये सेट मिल जाएगा. ओके, सपोज 12 टाइम टॉस कर रहे तो 11 टाइम तक टी टी आ रहा है एंड 12 टाइम में एच दिखा रहा है, यानी ये ट्रायल में 12 पॉसिबिलिटीज आ गए, टी 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 एच. ओके, तो इसी तरीके से इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो सैंपल स्पेस देखिए, द सैंपल स्पेस फॉर दिस सेम एक्सपेरिमेंट इज कैपिटल एस इज इक्वल टू अ सेट कंटेनिंग एच. पहले ट्रायल में डायरेक्ट एच आ गया, सेकंड ट्रायल में एच टी, थर्ड ट्रायल में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे. ओके, जब तक एच आता नहीं, दैट कॉइन डज नॉट शो एच, तब तक उसे टॉस करते रहना है. ओके, तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट यानी कि सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सो मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर. ओके, तो यहाँ पर रेंज भी क्या आता है वो देख लेंगे हम, और कोडोमेन. नोट दैट द एस कंटेन अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ टॉसिंग रिक्वायर्ड टू गेट अ हेड. जब तक हेड मिलता नहीं तब तक हम वो टॉस करते रहेंगे. ओके, दैट इज अनएंडिंग सीक्वेंस. हियर एस इज countably infinite. The random variable capital X defined from S to R, denoting the number of tossing required to get head, has a range 1, 2, 3, 4 and so on, which is also countably infinite. यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 7.1, ये जो पहले जो 2 क्वेश्चन जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, यही बेस पे डिपेंड्स है. ओके, तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया, व्हाट इज द रेंज. रेंज यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ 1 कैसे आ गया, फर्स्ट टाइम टॉस करने से हेड मिल गया. 2 यानी कि सेकंड टाइम टॉस करने से हेड मिल रहा है हमें. 3 बार टॉस करने से थर्ड टाइम एच मिला. 4 बार टॉस करने से देखिए टी 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 एच, तब हमें यहाँ पे एच मिलेगा. इस तरीके से 1 2 3 4, दैट इज द रेंज सेट. ओके, तो इस तरीके से हमें uncountably infinite sample space मिल रहा है, as well as range set is also uncountably infinite. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. सेकेंड टाइप, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. what is the meaning of continuous random variable? A random variable is said to be continuous random variable if it means condition. What is the condition? If the possible values of random variable form an interval of real numbers. जो भी इसके पॉसिबल वैल्यूज आएंगे वो रियल नंबर का इंटरवल होगा. दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स?
सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट. ओके, सबसे बड़ा रियल नंबर है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो द इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. फॉर एग्जांपल, द लाइफ ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब और एलईडी बल्ब लाइफ. तो सपोज कोई कंपनी उसका वारंटी अगर दे रहा है 2 इयर्स या 3 इयर्स, मान लो 3 साल का वारंटी है, लेकिन वो बल्ब 1 घंटे में खराब हो सकता है, 2 साल में खराब हो सकता है, या 3 साल में भी खराब हो सकता है, या 3 साल के बाद भी खराब हो सकता है. लेकिन कंपनी का ड्यूरेशन दिया है 3 इयर्स. यानी 3 इयर्स ड्यूरेशन, यानी क्या क्या होगा, 0 आवर्स टू 3 आवर्स, सॉरी 3 इयर्स. ओके, 0 to 3 इयर्स. इसका ये जो होगा इंटरवल होगा, एंड दैट इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. ओके, a random variable is said to be continuous if the possible values of this random variable form an interval of real number. यहाँ पे समझ में आया? The life of electric bulb, right? तो कब ऑफ होगा बोल नहीं सकते हम, that is continuous. ओके, लेकिन उसका ड्यूरेशन दिया है 3 इयर्स के बाद. कंपनी का वारंटी है 3 इयर्स, तो उसके पहले कभी भी जा सकता है, 3 साल के बाद भी और कुछ दिन जा सकता है, कुछ महीने जा सकता है, उसका लाइफ उस वक्त भी रह सकता है. ओके, तो दैट इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. हम और एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल इसमें. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज फॉर्म एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स. ओके, फॉर एग्जांपल, हाइट्स ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. अभी फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो ऑल ट्रीज इक्वल हाइट से नहीं होते, कम ज्यादा उसकी हाइट हो सकते हैं, लेकिन उसका भी पीरियड है, उसका भी हाइट का लिमिटेशन है. ऐसे नहीं तो 100 किलोमीटर तक हाइट हो सकती है, 10 किलोमीटर तक हाइट हो सकती है, 1 किलोमीटर तक हाइट हो सकती है, ऐसा नहीं. कुछ फीट तक उसका हाइट लिमिटेड है. ओके, तो दैट इज द लिमिटेशन. ओके, ये लाइफ ऑफ ट्रीज इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम. देन वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. पर्टिकुलर क्लास अगर ले लिया हमने, 12 स्टैंडर्ड क्लास ले लिया, तो उसमें भी वेट है 100 kg का कोई स्टूडेंट्स नहीं हो सकता है. ओके, तो उसका भी लिमिटेशन वहां पे भी वेट का है. सपोज मान लो 55 या 60, मैक्सिमम 60 तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन 50-55 kg तक मैक्सिमम ले सकते हैं. यानी 40 to 55 kg उसका वेट यहाँ पे वेरीज हो सकता है, यानी दैट इज द इंटरवल. ओके, डेली टेम्परेचर इन ऑफ अ सिटी, ये टेम्परेचर भी आपको पता है. देन और एक हमें दे दिया स्पीड ऑफ व्हीकल, इसका भी लिमिट होता है. वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, एंड दैट इज अ important example is life of an electric bulb in hours or in years. Okay, so on. These are the examples of continuous random variable. Let's start discrete random variable. अभी यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 7 there are two exercise, only two exercise are here, that is exercise 7.1 and 7.2. Okay, 7.1 depends on discrete random variable and 7.2 depends on continuous random variable. दो टाइप है डिस्क्रीट रैंडम, सॉरी रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. one is discrete random variable and one exercise depends on discrete random variable, and exercise 7.2 depends on another type, that is continuous random variable. लेकिन इस साल आपका जो सिलेबस है, तो ये चैप्टर में 7.2 पूरा डिलीट कर दिया है, यानी रिड्यूस किया है. ओके, तो 7.2 आपको स्किप करना है बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो ओनली आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टाइप्स पढ़ना है एंड एक्सरसाइज 7.1. ओके, एंड दिस चैप्टर हैविंग 5 मार्क्स, तो आपको 5 मार्क्स आसान से मिल सकते हैं. एंड दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग भी है. चलो स्टार्ट करते हैं हम. देयर आर 6 सब टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ भी बोल सकते हैं हम,
PMF means probability mass function, then probability distribution, cumulative distribution function CDF, then expected value, variance and standard deviation. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 6 टाइप्स हमें अभी पढ़ना है. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सब टाइप, probability mass function. What is mean by probability mass function? Let capital X be a discrete random variable defined on a sample space S. Suppose set S1 S2 dash dash Sn is a range of X. The function P which assign a number Pi is equal to capital P of X is equal to small xi for each value of xi is called as probability mass function. Okay, आपको x मालूम है. What is the meaning of x? Random variable. What is this set? x1 x2 x up to xn means infinite भी ले सकते हैं हम और finite भी ले सकते हैं. That is up to xn means it is a range set, range of x. Okay, and this probability p become PMF, that is probability mass function. Okay, when it become PMF, the condition is if 0, there are two conditions. First condition, 0 is less than or equal to Pi is less than or equal to 1, where I is equal to 1, 2, 3 up to n, and summation of Pi is 1. Okay, means आपको बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. व्हाट इज मीन बाय रेंज एंड व्हाट इज मीन बाय एक्स. ओके, जस्ट these values are given p1 p2 p3 p4. These values are given in a sum in a given question. These are given. आपको खाली ये दो कंडीशन चेक करना है. that values means that probabilities that pi lies between 0 and 1. मे बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. ओके, बट नेवर नेगेटिव और नॉट मोर देन 1. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करना है. सेकंड कंडीशन मींस आपको ये उसका एडिशन फाइंड आउट करना है. if the sum of all pi is 1, then it is PMF. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. और ये बेसिक तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1. ओके, समटाइम क्वेश्चन में अगर मोर देन 1 आ गया और निगेटिव आ गया, दैट इज नॉट PMF, राइट? तो ये दो कंडीशन आपको याद करना है. यू मस्ट रिमेंबर दिस टू कंडीशन. 0 is less than equal to pi is less than equal to 1, and their summation is it should be 1. That's it. Okay, let's start example. Exercise 7.1. हम यहाँ पे पूरे टाइप्स देने के बजाय एक एक टाइप पे हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो पहले सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको आसान से वो टाइप समझ में आए. एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 1 and 2 बाद में लेंगे. 1 and 2 जो है प्रीवियस टाइप पे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. टेक्स्ट बुक अगर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करें. यहाँ पे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. गिव रीजन ऑफ योर आंसर. यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एपीएमएफ नहीं है, ये हमें विथ रीजन देना है यहाँ पे. तो देखो क्वेश्चन में दिया है दिस टेबल x मींस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज दी है 0 1 2 एंड p ऑफ x इज आल्सो गिवन. हाईलाइट करते हैं उसे हम. p of x is also given. See, x is given here. X is given 1 2 3 4 0 1 2 and p of x means probability. p for probability. इसका वैल्यू दिया है 0.4 0.4 and 0.2. ओके, मींस ये x1 x2 x3, राइट? ये p1 p2 p3, these values are given. If it is PMF, तो that P of x satisfy both the conditions. चलो स्टार्ट करते हैं हम. Solution: PMF of a random variable should satisfy the following condition. 0, there are two conditions. 0 is less than equal to Pi is less than equal to 1 and
सेकेंड कंडीशन देयर एडिशन शुड बी 1. ओके, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, ये लाइन से थर्ड लाइन से हियर 0 इज लेस देन इक्वल टू पी आई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी ऑल प्रोबेबिलिटीज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. नाउ देयर एडिशन, ओके, समेशन ऑफ पी आई मीन्स समेशन ऑफ, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं P1 P2 दैट इज P1 प्लस, एक मिनट यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं हम, हाँ, दैट इज P1 प्लस P2, P1 plus P suffix 2 plus P suffix 3, 3 वैल्यू दिए, that is 0.4 plus 0.4 plus 0.2, 0.4 plus 0.4, how much is that? 0.8 plus 0.2, that is 1, 1.0 means it is 1, means both conditions are satisfied, hence it is PMF. The given function Pi or hence P of x or Pi भी बोल सकते हैं, P of x can be regarded as probability mass function of a random variable x. sometime y दे सकते हैं और मे बी कैपिटल Z, इस तरीके से भी वो डिनोट कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल को. ओके, जैसा अभी यहाँ पे p ऑफ x है तो हम p ऑफ x ही लेंगे. ओके, pi होगा तो pi कैन बी रिगार्डेड, और p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इस तरीके से देंगे, तो ये लेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं. ओके, तो चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. हम Question number 2, x and p of x is given. What is x? Random variable given 0, 1, 2, 3, 4 and p of x दिया है 0.1, 0.5, 0.2 and minus 0.1 and इस तरीके से. अभी यहाँ पे देखिए, you have to observe this one. यहाँ probability जो दिया है ये नेगेटिव है. Okay, means p of 3 is minus and which is not satisfy that condition 1. So it is not PMF. Okay, it is not PMF. तो हम देखते हैं यहाँ पे solution here p of x is equal to 3. x equal to 3 में क्या दिया है, is equal to p of x is equal to, थोड़ा सा ये होगा, is equal to p of x equal to 3 is equal to minus 0.1, minus 0.1. okay, minus 0.1, that is p of I or pi or probability is less than 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, less than 0, which does not satisfy first condition. okay, which does not satisfy first condition, means here contradiction is there, hence p of x cannot be regarded as a probability mass function of random variable x. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गया, तो एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, इज इक्वल टू means p of x is not a PMF. That's it. Now question number 3, x is 0, 1, 2 and p of x is 0.1, 0.6, 0.3. यहाँ पे देखिए बस you observe that probabilities all are less than or equal to 1. okay, तो here हम इस तरीके से बोल सकते हैं, here 0 is less than equal to pi is less than equal to 1 and their summation is 1, hence it is PMF. okay, p of x is PMF. Now question number 4 from your textbook, here random variable is capital Z is given, it's 3, 2, 1, 0, minus 1 and p of Z is, means probability define किया है 0.3, 0.2, 0.4, 0 and this one, तो probability 0 भी आ सकता है. okay, here the first condition satisfy हो रहा है. solution here the first condition is satisfied, that is here इस तरीके से लिख सकते हैं हम, here 0 is less than equal to pi is less than equal to 1, which this condition is satisfied, and summation of pi is equal to 0.3 plus 0.2 plus 0.4 plus 0 plus 0.04 is not equal to 1. तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, that is 0.5 plus 0.4 means 0.9, 0.9 plus 0.5 that is 0.95, not exactly 1. So it is not PMF. okay, it is not PMF. P of Z is not PMF. तो बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, खाली आपको दो कंडीशन याद रखना है. तो
इसमें देखिए y दिया है, y is -101 and p of y is 0.6, 0.1 and 0.2. Right here 0 lies between, see, 0 p of I lies between 0 and 1, means 0 is less than or equal to pi less than or equal to 1. तो ये condition तो satisfy हो गई. Now you have to find out addition. Summation of pi is equal to p1 plus p2 plus p3, that is 0.6 plus 0.1 plus 0.2 is equal to 0.9 is not equal to 1, so it is not PMF. Okay, is not PMF. P of y or P of z is not PMF. And the last question of this type is x is equal to 0, 1, -1, -2, and P of x is given 0.3, 0.4 and 0.3. Okay. Solution: the PMF of a random variable should satisfy the following conditions. That is, first is 0 is less than equal to pi is less than equal to 1, यानी कि probabilities दो है 0 and 1 के बीच में होना चाहिए, and their addition should be 1. चलो देखते हैं हम यहाँ पे probability 0 and 1 के बीच में दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे you should mention here 0 is less than equal to pi is less than equal to 1, means first condition is satisfied. Now the addition समीशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे -1 -2 की वजह से अगर कंफ्यूज हो रहे तो जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यू डायरेक्टली. दैट इज 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.3, इट बिकम 1 एंड हेंस इट इज PMF. P of x is PMF of random variable capital X. ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का PMF की जो भी क्वेश्चंस थे वो सब हम सॉल्व कर चुके. एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे जब ये पूरे टाइप्स हो जाएंगे तब. नाउ सेकंड टाइप इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज also very very simple type. What is the definition of probability distribution? Let capital X be a discrete random variable defined on a sample space capital S. Suppose the set S1, S2, S3, Sn be or is a range of x and pi defined in this way. Pi is equal to P of x is equal to xi for each value of xi is PMF. यहाँ पर अभी ये जो आ गया P और कैपिटल P of x is PMF. ये PMF होगा. The set of order pair is called as probability distribution of x. Okay, set of order pair xi pi. जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो टेबल था xi दिया है pi दिया है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी ऑर्डर पेयर में आना चाहिए हमें. ऑर्डर पेयर xi pi. व्हाट इज xi? दिस वैल्यू xi क्या आता है? xi इज नथिंग बट रेंज ऑफ x, कैपिटल X, रेंज ऑफ random variable. And what is P of I? Means corresponding probabilities given. Okay, means the order pair xi pi is nothing but probability distribution. is very simple. यानी यहाँ पर जो रहेगा pi, that is PMF. PMF का मतलब क्या होता है? It satisfy both the condition, that is probability lies between 0 and 1 or 0 or 1 also, and their addition, their summation should be 1. सबका एडिशन 1 आना चाहिए, then it is PMF. तो यहाँ पर pi PMF है और xi क्या है? The elements from a range set of random variable. Okay, it's very simple definition. चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा और इसे शॉर्ट में लिखते हैं. दैट इज कन्वीनियंटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म एज फॉलो. देखो प्रीवियस में हमने ये इसी तरीके से क्वेश्चन लिया था. टेबुलर फॉर्म में x दिया है, p ऑफ x दिया है. तो दिस टेबल शोज दिस ऑर्डर पेयर x1 p1. ओके, x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p3, x4 p4, xn and so on, xn pn. ओके, और यहाँ पे देखिए एडिशन इज 1 आ रहा है. तो ऑर्डर पेयर यानी टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम. अगर क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो लास्ट आंसर में इस तरीके से टेबल दिखाना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. नाउ अगेन सेम एक्सरसाइज 7.1, continue question number 4. Okay,
प्रीवियस क्वेश्चन थर्ड हमने स्टार्ट सॉल्व किए, उसमें 6 सब क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन ही वैसा है, पीडी निकालना है, मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें टेबल बनाना है। एक्स की वैल्यूज देंगे, x1 x2 अप टू xn, जितने भी वैल्यूज होंगे, एंड पी लिखना है, वो टेबल बनाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे देखिए कितने 3 क्वेश्चन है। ऑफ फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। सेकेंड, number of tails in simultaneous tosses of 3 coins. And number of third question क्या है, number of heads in 4 tosses of coin. ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, फॉर 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, और इस तरीके से बोल सकते हैं हम 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, ओके, साइमल्टेनियसली, और 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, ट्वाइस, ओके। फॉर two tosses of coin, the sample space S is equal to HH, HT, TH, TT. Okay, there are 4 sample points, HH, HT, TH and TT. सैंपल स्पेस मिल गया हमें, उसे हम कैपिटल एच भी दे सकते हैं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। एक्स डिफाइन किया है यहाँ पे, ओके। से क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, that x can takes the values 0 1 2, okay, that's it। x क्या आ गया, 0 1 2। see आपको यहाँ दिखा देते हैं, how many heads are here, in this case 2, here 1 1 and here 0, there is no head in tt, so x can takes the values 0 1 2, okay, 0 1 2, so p of x is 0, p of x is 0। how many sample points here, sample points are 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ns is 4। you know probability, probability means p of a is equal to na upon ns, right। तो p of x is equal to, यहाँ पे probabilities निकालना है हर एक का। p of x is 0, x is 0 means there is no head, तो यानी कि एक मिनट आपको यहाँ पे इरेज करते हैं हम, हाँ, p of x is 0 means there is no head, that is यहाँ पे आ जाएगा p of 0, p of 0, how many elements are there, only one element is there, that is 1 by 4, okay। p of 0 0 means there is no head, there is no head, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, तो a कितना आ जाएगा, a is equal to tt, how many elements, na is equal to 1, तो p of a, p of a is equal to na upon ns, that is 1 by 4। ये 10th पे पढ़ चुके आप, 11th पे भी था प्रोबेबिलिटी, तो ये बेसिक था। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन आल्सो, ओके। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज 0 मींस x क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर देखिए x डिफाइन किया है, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, ओके। tt में नंबर ऑफ हेड्स कितने, 0, x इज 0 हियर, x इज 0 मींस 1 अपॉन 4, राइट, 1 अपॉन 4। नेक्स्ट x, p ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यानी कि नंबर ऑफ हेड्स इज 1, नंबर ऑफ हेड 1 कितने आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड इज 1, यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 2 दिख रहे हैं, 2 सैंपल पॉइंट दिख रहे हैं, मींस एच टी एंड टी एच, इसके अंदर हेड है एच टी और टी एच में, तो यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स आ गए 2, देन प्रोबेबिलिटी इज 2 बाय 4, दैट इज 1 बाय 2, एंड लास्ट पॉइंट आएगा p ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2, कहां पर दिख रहा है आपको नंबर ऑफ हेड्स, 2, हियर एच एच, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1, दैट इज 1 बाय 4, ओके, 1 बाय 4, यानी कि x हमें पता है, x की वैल्यूज क्या है, 0 1 2, x is 0 1 2, and p of 0 is 1 by 4, p of 1 is 1 by 2, p of 2 is 1 by 4, राइट। तो इस तरीके से हम पीडी लिखेंगे, probability distributions, okay। Now the required probability distribution is
टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमें x इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 1 2, क्योंकि x हमने क्या लिया था, x takes the value 0 1 2 because of the definition of x. Okay, the condition for x 0 1 2 and corresponding values क्या है, 1/4 1/2 एंड अगर दोनों भी हेड है तो 1/4 ही आता है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. गॉट इट. तो यहाँ पर क्या है, एक डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है, x डिफाइन किया गया है. यू हैव टू फाइंड आउट x1 x2 x3 मींस रेंज सेट निकालना है एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालना है. तो यहाँ पर रेंज सेट क्या है, 0 1 2, यानी वैल्यूज ऑफ x क्या है, x क्या है 0 1 2. यू हैव टू फाइंड आउट p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 और p0 p1 p2 निकालना है आपको, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है फ्रॉम डेफिनेशन. देन लास्ट में टेबल बनाना है, दैट इज द फाइनल आंसर. ओके.